Continuing with listening to pupils' voice, we see that this concept of student voice is not something new in education. ये हमने एक्सपीरियंस किया है ड्यूरिंग द 1960s एंड 70s, जबकि हमने देखा कि स्टूडेंट एम्पावरमेंट की मूवमेंट्स चली और बहुत हमने देखा लेट्स से एट द हाई स्कूल लेवल, एट द कॉलेज लेवल, एट द यूनिवर्सिटी लेवल, कि हमने देखा कि स्टूडेंट्स वर वेरी एक्टिव in getting themselves involved in the decision making processes of the institution. So not only कि they were trying to get involved, they got involved, और बहुत सारे decision making में वो actively participate करते थे और उन्होंने अपने rights को assert किया, और वो decision जो कि क्लासरूम के मुतालिक थे या स्कूल या इंस्टीट्यूशन के बारे में ऑन दी होल थे, दे यूज टू बी पार्ट ऑफ इट. ये मूवमेंट ज़रूर चली, पार्टिसिपेशन भी बहुत हुई, लेकिन कुछ ऐसे लगा उस ज़माने में कि ये ओवर हो गया है. और फिर हमने ये देखा कि ये कल्चर लार्जली वैनिश्ड आफ्टर द मिडल ऑफ 1970s. और is during this time many adolescents experienced increasing alienation, कि वो उससे let's say alienate हो गया, उससे उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, और जिसकी बेसिस पर ये बात समझ में आने लगी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं हैं, वो सिर्फ सौदा लेने आए हैं, वो सिंपली कस्टमर्स हैं, वो सिंपली क्लाइंट्स हैं, and they have to be treated that way. और इस चीज़ ने ये रिज़ल्ट इसका ये हुआ कि स्टूडेंट टीचर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गया, गैप ज़्यादा हो गया, जिससे टीचर्स को स्टूडेंट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क आ गया, और स्टूडेंट की अगेन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टीचर्स उसमें फिर गैप आ गया. So we have to close that distance between the teachers and the students. और इस गैप की वजह से स्टूडेंट्स ने कुछ इस किस्म की बात की कि भाई वो कह रहे हैं कि उनके व्यूज़ तो हैं लेकिन nobody cares, nobody listens to their views, और उनको very rarely involved in the important decision making activities में, particularly those that affect their own work, that is the students' activities. So the right to speak is the right to be listened to. Right to speak is the right to be listened to. This is important. So in practice there is a gap between speaking and being listened to. ये बात हमने पहले भी की है कि अगर ये गैप होगा तो फिर इसका रिज़ल्ट जो है is not, let's say, healthy. So it created let's say problem कहाँ, सिस्टम में सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स फिर नज़र आते हैं, स्कूल सिस्टम में, टीचिंग सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम then experiences some problems, and this contribute to the youth disengaging from the school, कि उनका इंटरेस्ट कम हो गया, ओनरशिप कम हो गई, so they feel like let's say not interested in school, they might leave it early, abstain it, drop out, whatever. So there was an increase in number of students who cut classes, have lower self-concept, lower achievement, and drop out of school. So because of let's say the missing that contribution or participation from the side of students, it had negative effects on let's say achievement of the students and then their disengagement. So by the turn of the century, students' voice has re-emerged on the educational landscape
particularly in the Western society. So there is an impression or a notion that if students actively participate, then student outcomes will improve and school reform will be relatively more successful. Student activities can range, or student voice activities can range from school gathering information from students through focus group discussions and surveys. अब इसमें हम ये देखते हैं कि रिसर्च के हवाले से द स्टूडेंट्स आर सब्जेक्ट्स, दे आर द लेट्स से प्रोवाइडर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अब रिसर्चर जो है वो उनको फोकस ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व करके उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो सकती है. सिंपली क्वेश्चनर बनाकर उनको दिया जा सकता है, अगर वो पुर कर सकते हैं ख़ुद करेंगे, या उनको इंटरव्यू भी किया जा सकता है. तो इस सेंस में हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वो नेसेसरी है, क्योंकि अगर हम इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के बारे में हम मांगते हैं तो स्टूडेंट्स आर द लेट्स से रिस्पोंडेंट्स. तो ये एक है उनकी इन्वॉल्वमेंट का. दूसरा है स्टूडेंट्स वर्किंग अलोंगसाइड टीचर्स टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज फॉर स्कूल इम्प्रूवमेंट. दूसरा इन्वॉल्वमेंट का ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ सब्जेक्ट्स नहीं हैं, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द डिसीजन मेकिंग हैं, इन द इम्प्लीमेंटेशन हैं, एंड देन ओनरशिप वो लेते हैं. और इसके बेसिस पर ये सारी जो अप्रोच है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्कूल है. और इम्प्रूवमेंट स्कूल जो है ये ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में ली जा रही है कि और अगर बच्चों की तरबियत अच्छी हो रही है तो दैट मीन्स स्कूल हैज़ इम्प्रूव्ड. अब स्टूडेंट वॉइस हैज़ सर्व्ड एज ए कैटलिस्ट फॉर चेंज इन स्कूल्स, इंक्लूडिंग इसमें देखें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं कि इनकी वजह से हम ये देखते हैं कि इट हेल्प्स टू इम्प्रूव टीचिंग. जो अगेन इंटरेक्शन है बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट्स. तो टीचर की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, उसके बेसिस पर चेंजेस इन करिकुलम आ सकती हैं. एंड देन ऑन द होल अगर हम देखें तो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द टीचर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, and which is going to lead to the improvement in relationships. और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इट चेंजेस इन स्टूडेंट असेसमेंट एंड टीचर ट्रेनिंग. स्टूडेंट असेसमेंट सिर्फ इम्तिहान ही नहीं होगा, सिर्फ टेस्ट ही नहीं है, उस टेस्ट के साथ और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, असाइनमेंट्स हो सकती हैं, क्लासरूम पार्टिसिपेशन हो सकती है, एंड सो मैनी अदर थिंग्स कैन हैपन. और इसके बेसिस पर बहुत सारी चेंजेस टीचर ट्रेनिंग के करिकुलम में हो सकती हैं और वहाँ अप्रोच में हो सकती हैं. और इस फ्रेमवर्क में अगर हम देखें तो देयर इज़ ए रियलाइजेशन ऑन द पार्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स के स्टूडेंट पोजेस यूनिक नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव्स अबाउट देयर स्कूल एंड एडल्ट्स. तो ये एक लेट्स से अंडरस्टैंडिंग हुई है, रियलाइजेशन है कि स्टूडेंट्स हैव द लेट्स से फीलिंग्स, इम्पॉर्टेंट फीलिंग्स, experiences, and they have their own, let's say, vision about the situation, their own approach, their own, let's say, perspective about the institution, about the educational institution, as well as the adults who run that institution. Also, we see that there is a correlation between an increase in student voice in the school culture and an increase in students' school attachment. ये अटैचमेंट मैंने जब बात की तो पहले भी हुई है कि देन दे ओन दैट इंस्टीट्यूशन, और जब ओन करते हैं तो देन परहैप्स दे वुड आल्सो कम फॉरवर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, protection of the values of that institution, culture of that institution, even the physical, let's say, infrastructure of the institution. So that is very important.